मेकअप ऐसा करें जिससे अगला इंसान कॉन्फिडेंट फील करे। दूसरा, उसकी पर्सनालिटी थोड़ी सी इट शुड शाइन थ्रू। फैशन फॉर मी इज समथिंग दैट मेक्स यू फील अप टू डेट विद द लेटेस्ट ट्रेंड। आई थिंक फॉर बिकमिंग अ गुड मेकअप आर्टिस्ट communication is very important. Now Pakistani makeup is getting a lot of recognition worldwide because हम लोगों का makeup it's actually very different from Indian and other styles of makeup. Today I have my beautiful model with me. इनके ऊपर मैं एक बहुत अच्छी सी modern minimalistic makeup look कर रही हूँ. We'll be doing a reception makeup look. Assalamu alaikum. My name is Ana Manzoor. I'm a makeup artist, I'm an educator and a brand owner. So I started working in the industry about 4 years back. Initially I started doing fashion shoots and then I opened up my bridal makeup studio. It's been about 4 years now and recently I just launched my jewelry and accessories brand. I've also been giving makeup classes it's been about 2.5 years that I've been giving makeup classes. I train people to become professional makeup artists and start their work in the industry. Fashion for me is something that makes you feel up to date with the latest trends. Besides that, I think it's very important that whatever fashion you're doing, you need to be comfortable with that. So I do not believe in following each and every trend. I think fashion is something that you can carry well, something that goes with your personality. That according to me is fashion. I think makeup is about how you create the overall look. So it's not only about the makeup, it's also about the hair, it's about the styling. For me, makeup, I feel like it should reflect your personality, like it should enhance your beauty, but at the same time, it should be something that goes with your personality. Okay, so why I chose this name Namsoli was because one, I always thought that my name is very common and there were plenty of salons by the name of Anam. So I wanted to come up with something that's different, something that is very catchy. So I just came up with it, mixed a couple of words, and this is how I came up with it. There is no meaning to it, but it is something that has a backstory, something that's very close to me. I started with a very small setup. It was a home-based makeup studio. Initially, I did not have too many people. It was just me, my hairstylist, and I was the person who was doing everything, managing the appointments. I was the content creator, I was the editor, doing everything on my own. But I had a few good clients, and with time, I think I had a good clientele. So with time, I decided to expand the setup. I kept adding people one by one, and with time, I realized I can move to a commercial setting. So I moved my studio to another place. I have a team of around 15 to 20 people now. I think for becoming a good makeup artist, communication is very important because besides being good at makeup and hair, it's also very important that you can communicate with your client. I think अगर आप client का vision understand करेंगे तो ही you can deliver something that they require. It's very important to understand कि आपके client की personality क्या है, क्या वो वाली look carry कर सकते हैं जो आपके mind में है. So I think if you're able to communicate with your client and understand what they require, only then I think you're able to deliver them something that they'll actually love. Now Pakistani makeup is getting a lot of recognition worldwide because हम लोगों का makeup it's actually very different from Indian
and other styles of makeup. अब हमारा जो मेकअप है वो क्योंकि हमारे ड्रामाज बहुत पॉपुलर हैं इन डिफरेंट कंट्रीज़, बांग्लादेश में, इंडिया में, बहुत सारी कंट्रीज़ में, सो नाउ पीपल लुक अप टू अस फॉर फैशन एंड फॉर मेकअप. हमारा मेकअप उनसे इस तरह से डिफरेंट है क्योंकि उनका जो मेकअप होता है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू देयर स्किन टोन, उनके कल्चर से रिलेटेड होता है. हमारा मेकअप इज़ मोर टूवर्ड्स दी सटल साइड. हम लोगों के मेकअप में मेन चीज़ जो आजकल जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी फॉलो हो रहा है दैट इज़ हमारे मेकअप में स्किन बहुत नेचुरल रखते हैं. वी मोस्टली फोकस ऑन एनहांसिंग दी नेचुरल ब्यूटी. सो दिस इज़ समथिंग दैट वी डू विद इवन विद द ब्राइडल लुक्स. थोड़ा बोल्ड मेकअप भी होता है तो उसमें वी ट्राई एंड एनहांस द स्किन. सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट डिफरेंशिएट्स पाकिस्तानी मेकअप फ्रॉम अदर मेकअप. Honestly, मैं हमेशा से तो I was not a makeup artist. Initially, I was doing a couple of other jobs, but then I accidentally came across a shoot where I had to do a model's makeup, and it turned out very well. So this is when I decided कि okay, I can consider this as a proper career. So with time, with every passing day, I think आहिस्ता आहिस्ता आप खुद भी ग्रूम हो जाते हैं. The more makeups that you do, जितना आपका experience होता है, it always polishes your skills. फिर विद टाइम आई स्टार्टेड माई मेकअप स्टूडियो. उसके बाद फिर मुझे एक आइडिया आया कि मैं क्यों ना मेकअप क्लासेस स्टार्ट करूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते थे. आई रियलाइज्ड कि देयर आर सो मैनी फीमेल्स हु वांट टू गेट इन द इंडस्ट्री, बट लोगों को एक्चुअली एक तो ये नहीं समझ आता कि वो कहाँ से मेकअप सीखें. देयर आर वेरी फ्यू इंस्टीट्यूट्स पाकिस्तान में स्पेशली जो कि आपको मेकअप और हेयर स्टाइलिंग सिखाते हैं. And जो हैं भी they are quite expensive. So I wanted to come up with something that's relatively affordable for everyone. And I wanted कि like जिस तरह मैंने अपना career start किया, obviously I did not have too much knowledge. मुझे actually पता भी नहीं था इतना ज़्यादा कहाँ से सीखना है, क्या करना है. But with this knowledge that I have now, I felt like this is something that I'll enjoy doing. और मुझे honestly I meet so many new girls every day and there are so many talented people out there. लोगों को इतना शौक़ है सीखने का, बस लोगों को सही डायरेक्शन नहीं पता कि हमने कहाँ से सीखना है, कैसे अपने करियर को लेके चलना है. सो दिस इज़ समथिंग दैट आई लव डूइंग. मैं लोगों को काउंसिल भी करती हूँ. आई टेल देम कि किस तरह से वो अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, बी इट इन द फैशन इंडस्ट्री और इन द ब्राइडल मेकअप इंडस्ट्री. I think fashion and styling they both come hand in hand because आपका makeup, outfit, jewelry, each and everything is important. सिर्फ अगर आपका मेकअप अच्छा होगा तो आपकी लुक मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट हो सकती है विदाउट द राइट काइंड ऑफ हेयर डू, विदाउट द राइट काइंड ऑफ स्टाइलिंग. सो मैं जब भी अपनी ब्राइडल लुक्स प्लान करती हूँ या किसी फैशन शूट के लुक्स प्लान करती हूँ, आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि सबसे पहले आई टेक इनटू अकाउंट कि हमारा आउटफिट क्या है, ज्वेलरी क्या है, मॉडल के फीचर्स क्या हैं, व्हाट्स अ पर्सनालिटी लाइक, क्या चीज़ है जो वो अच्छे से कैरी कर सकती है. सो आई थिंक स्टाइलिंग, मेकअप, आउटफिट, ऑल दीज थिंग्स कंबाइन टुगेदर, ओनली देन यू विल गेट द परफेक्ट काइंड ऑफ अ लुक. मेरे तो दो ही गोल्स हैं मेकअप के साथ. व्हेन आई स्टार्टेड तो मेरा यही था कि एक तो आप मेकअप ऐसा करें जिससे अगला इंसान कॉन्फिडेंट फील करे, दूसरा उसकी पर्सनालिटी थोड़ी सी इट शुड शाइन थ्रू. आप किसी को इस तरह की कोई लुक ना दें समथिंग दैट दे आर नॉट कंफर्टेबल विद. सो आई थिंक आपके नेचुरल फीचर्स को इन्हांस करना चाहिए and something that the other person can actually carry very well because at the end of the day a happy client is only someone who can actually pull off that look. I think fashion shoots काफ़ी ज़्यादा important है because they reflect your vision. Like with every wedding season I come up with different kinds of makeup looks. थोड़ा सा जो trending makeup looks होती हैं आई यूजली ट्राई कि मैं अपने फ़ैशन शूट्स के थ्रू वो वाली चीज़ें दिखाऊं. फिर इट्स लाइक माई पोर्टफोलियो. विद एवरी वेडिंग सीज़न आई वांट कि मेरे क्लाइंट्स आके देखें कि हम क्या इस दफ़ा नए ट्रेंड्स कर रहे हैं, वो देखें कि मेरा विजन क्या है, हाउ आई सी माई ब्राइड्स, हाउ आई वुड लाइक टू ड्रेस दैम अप, हाउ आई वुड लाइक टू स्टाइल दैम अप. So I think fashion shoots are really important for a makeup artist and for the fashion industry.
I think 2024 is more about a more minimalistic and a subtle makeup look. I think जो आपकी overall the outfits are very nice. The fashion designers are doing an amazing job. For brides, the overall makeup and the hair looks are relatively minimal. आपको पता है पहले जिस तरह से हमारी brides का makeup और hair do's होते थे, they were very bold, थोड़ा loud makeup होता था. But with time, अब सब लोगों को ये समझ आ गई है कि जितना minimal makeup होता है, जितना subtle सारा कुछ होता है, उतनी ही अच्छी look आती है. I think makeup and jewelry both go together because when you see fashion shoots, when you do bridal makeup, आपकी बहुत सारी makeup looks they are dependent on jewelry because jewelry is something that is again very close to our face. It enhances your features as well. आपकी jewelry के कलर्स पे बहुत डिपेंड करता है, आपकी ज्वेलरी के स्टाइल पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका मेकअप किस तरह का होगा, आपकी हेयर स्टाइलिंग किस तरह की होगी. आई ऑलवेज फेल्ट लाइक कि जब भी आप मेकअप क्लासेस देते हैं, जो कि मोस्टली लोग वर्ल्ड वाइड भी या यहाँ पे भी जो ज़्यादातर लोग क्लासेस देते हैं, दे डोंट गिव अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. लोग यूजुअली डेमोज दे देते हैं, आपको मेकअप करके दिखा देते हैं. बट विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई ऑलवेज फेल्ट लाइक कि मैं हमेशा प्रैक्टिस से ही ज़्यादा सीखी हूँ बिकॉज आपको पता है अब विद सोशल मीडिया एंड ऑल यू सी अ लॉट ऑफ मेकअप ट्यूटोरियल्स. अब बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे भी मिल जाती हैं, डिफरेंट मीडियम्स पे मिल जाती हैं. बट जब तक आप एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं करते विद डिफरेंट फेसेस, डिफरेंट स्किन टोन्स, तब तक आई फील लाइक कि आप कभी भी उस चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते. सो मेरा क्लासेस का सेटअप कुछ इस तरह का होता है कि वन डे वी डू अ डेमो ऑफ अ सर्टन मेकअप लुक. द वेरी नेक्स्ट डे हमारा प्रैक्टिस सेशन होता है. हमारे कुछ सेशंस होते हैं जो कि सेल्फ प्रैक्टिस के होते हैं. फिर वी हैव अ कपल ऑफ सेशंस जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स को मॉडल्स प्रोवाइड करते हैं विद डिफरेंट स्किन टोन्स, डिफरेंट स्किन टेक्सचर्स, और वो उनके ऊपर मेकअप करते हैं एंड दिस इज़ हाउ दे लर्न मेकअप. फिर हम उसके अलावा उनको पोर्टफोलियो बना के देते हैं जिसमें उनको बहुत सारा आइडिया हो जाता है कि हमने कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, लाइटिंग कैसे सेटअप करनी है. बिकॉज आपको पता है इट्स अ मेजर पार्ट ऑफ दिस बिजनेस. अगर आप अपना जो काम है उसको अच्छे तरीके से दिखा नहीं सकते तो हर कोई तो आपको आके आपका इन पर्सन मेकअप नहीं देख सकता. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो काम कर रहे हैं आपको उसको सोशल मीडिया पे दिखाना भी आता हो, उसको मार्केट भी करना आता हो. सो दिस इज़ हाउ वी टीच आवर स्टूडेंट्स. आई थिंक सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आजकल. मैंने ख़ुद भी जब अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, माई सोल सोर्स ऑफ मार्केटिंग वॉज सोशल मीडिया. इंस्टाग्राम, फेसबुक, सो मैनी अदर मीडियम्स जिस पे आप अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं. मैंने क्योंकि अपना किया ही इस तरह है तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे ऑफ प्रमोटिंग योर बिज़नेस. अब तो आप घर बैठे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं विद सोशल मीडिया. यू डोंट इवन हैव टू गो आउट फॉर मार्केटिंग और एनीथिंग. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. अब तो लोगों के लिए बहुत आसान हो गया. इवन द पीपल हु कांट रियली गो आउट, दे कैन डू सो मैनी थिंग्स स्टेइंग एट होम. वी कैन डेफिनेटली पोर्ट्रे आवर कल्चर एंड हिस्ट्री थ्रू स्टाइलिंग एंड मेकअप. हम इंटरनेशनल ट्रेंड्स भी फॉलो कर सकते हैं बट उसको अपने कल्चर के साथ भी मर्ज कर सकते हैं. अब जिस तरह हम डेफिनेटली मेकअप में बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेंड्स फॉलो करते हैं बट जब भी हम कोई ब्राइडल लुक क्रिएट करते हैं इट यूजुअली शोज़ आवर कल्चर. सो दोनों चीज़ों का ब्लेंड, आई थिंक इट्स एन अमेजिंग वे टू प्रमोट योर कल्चर एज वेल. मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मेकअप वो रहा है जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ैशन शूट्स करती थी. देन आई ऑल्सो मूव टूवर्ड्स डूइंग एडिटोरियल मेकअप लुक्स. तो आई थिंक एक तो ये कि मेरी क्रिएटिविटी भी वहाँ से आई बट एट द सेम टाइम इट वाज आल्सो वेरी चैलेंजिंग फॉर मी क्योंकि उसके लिए आपको एक प्रॉपर इंस्पिरेशन चाहिए होता है. आई यूज़ टू कम अप विद थिंग्स जो कि मैंने कभी पहले ट्राई ना की हूँ, डिफरेंट मेकअप लुक्स एंड हेयर स्टाइल्स. दैट वाज वेरी चैलेंजिंग
बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक कि उससे मैंने बहुत सीखा. दैट एनहांस्ड माई क्रिएटिविटी एज वेल. आई थिंक फॉर यंगस्टर्स आई वुड से दे नीड टू डू 2-3 things that are very important. One is you should always learn. I think whenever you are in a creative field, तो आपका learning process is ongoing. I still feel like even after 4-5 years, I still feel like I'm still learning because आपको पता है कि नए trends, नई तरह के products, हर चीज़ with time evolve करती रहती है. This industry keeps evolving. So you need to stay up to date with the trends. आपको हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए. दूसरा I would recommend कि आप ज़रूर hands on practice रखें. आप internships करें, आप different जगहों से मेकअप ज़रूर सीखें. Even if you're good at something, you should still try कि आप एक्सपीरियंस लें, आप चीज़ें सीखें. आई थिंक आपको किसी भी फील्ड में आने के लिए सबसे पहले तो उस फील्ड पे थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए हु आर द टॉप पीपल इन दिस फील्ड. सो डेफिनेटली गो अराउंड, लुक अराउंड पीपल हु शेयर योर इंटरेस्ट, जो इस फील्ड में टॉप पे हों. उनका काम ज़रूर देखें, उनसे इंस्पिरेशन ज़रूर लें, बट ऑलवेज़ हैव योर ओन स्टाइल. Today I have my beautiful model with me. इनके ऊपर मैं एक बहुत अच्छी सी modern minimalistic makeup look कर रही हूँ. We'll be doing a reception makeup look. This is a reception makeup look inspiration for you. Eye पे हम smudge सा eyeliner करें and I'm giving her a glowy and a minimal, very natural looking skin. सबसे पहले मैं crease में एक बहुत light सा peachy brown shade लगा रही हूँ. इसको भी हम अच्छे से blend कर रहे हैं. I'll only be using 2 colors. एक शिमर का शेड होगा और एक मैट शेड यूज़ होगा. अब हम एक सिल्वर की टोन में आई शेड दे रहे हैं इनको. This will give a very nice smudged glitter kind of a look. इधर देखो मुझे बंद कर. अब मैं इनको एक विंग्ड आईलाइनर ऐड कर रही हूँ और उसको हम थोड़ा सा स्मच कर रहे हैं कॉर्नर से. आईज खोलें. विंग लाइनर की एक सिंपल सी टेक्निक है कि आपने नीचे से आई की शेप को फॉलो करना होता है. हर एक की आई एक डिफरेंट शेप की होती है. जिस तरह इनकी आई नीचे से इस डायरेक्शन में जा रही है, सो इनका जो विंग लाइनर होगा वो एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में जाएगा. और फिर आप अच्छा सा कोई सॉफ्ट सा फ्लफ़ी ब्रश लेके उससे आप लाइनर को इस तरह से स्मच कर सकते हैं. इधर देखें. एंड देन इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों साइड्स को बिल्कुल बैलेंस रखें. अब मैं इनके आई लैशेस ऐड कर रही हूँ. बंद करिए. आइज खोल लें, ऊपर देखें. बंद करिए. आई लैशेस को जब भी आप लगाएं तो इसको कॉर्नर से ज़रूर आपने लिफ्ट देना है, सो आई थोड़ी ओपन लगे. आइज खोलें. ठीक है. अब मैं इनकी ब्राउ बोन में हाइलाइटर ऐड कर रही हूँ. एंड इनर कॉर्नर में भी हाइलाइटर ऐड कर रही हूँ. अब हम इनका मस्कारा ऐड कर रहे हैं, उससे इनकी लैशेस जो ओरिजिनल लैशेस हैं उनमें भी वॉल्यूम आ जाएगा. आइज बंद करिए. So this is the final look that we've created. हमने eyes बहुत glittery और थोड़ी सी dramatic रखी हैं and the rest of the face is very subtle. Lip color भी हमने बड़ा minimal सा रखा है. I hope you like it.
I would definitely like to thank Discover Pakistan for recognizing the new talent, and I think negative image तो हर country का बहुत से लोग दिखाते हैं, but Discover Pakistan is definitely showing the positive side of this country, how we are flourishing, how our industry is flourishing. So I think that's a very positive thing to do, और इससे बहुत सारे लोगों को जो लोग अभी अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं उनको एक encouragement, एक support मिलेगी. This is Anna Manzoor. Thank you for having me on Fashion Diary. Stay tuned and keep watching Discover Pakistan.